Hello, students. Good evening. Today, once more, we'll discuss the same topic, the development of English language. As we discussed earlier, that's a English language. English is the win. It's a English is uh, known as a global language, commerce language, window language, right? There are three most spoken languages are in the world. Mandarin, that's a Chinese language, and English and Hindi. Mandarin is the most spoken language in the world, and then English, and then Hindi. There are a number of factors for language. That's how language has become the tongue of many, right? So that depends number of factors like business, like expansion, right? That all other factors work, and that is why one language has become the language of many, right? That's English language. So how English has become the most spoken language, let us see. The development of English language is a fascinating story of conquest, migration, and cultural exchange. So, when we discuss, please take a note that that's a story is conquest, migration, and cultural exchange. So, first of all, let us discuss that's a conquest because you know that colonies were being made, right? British, they were moving here and there, and they were making colonies, right? They were doing possession in different places. So one reason is conquest, migration. When you migrate somewhere, so then definitely your language and water change. हमारे हिंदी में कहते हैं कि कोस कोस में बदले पानी, कोस कोस में बानी, है ना? कोस कोस में बदले पानी, पानी, और कोस कोस में वाणी। मतलब अगर every 15 miles or every after certain distance, language and water changes. तो फिर अगर इतना चेंज इतना this the main reason that language and water cannot be alike, right? तो वो बदलता ही है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का जर्नी हम यहाँ देखने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी एंड मेजर रीज़न आर कॉन्क्वेस्ट, है ना? बहुत जगह जीत गए, आधिपत्य हो गया उनका, वो वहाँ रहने लगे ब्रिटिश लोग, तो उन्होंने इंग्लिश लोगों को सिखा दी। नंबर टू, माइग्रेशन। जब आप माइग्रेट होते हो एक जगह से दूसरी जगह से, तो वहाँ पर अपना भी कुछ ना कुछ आप छोड़ के आते हो, है ना? यू लीव योर impression, your culture, right? And you learn the culture from the natives. Even if we take example that's north, east, south, west, so if you move to south, so you will learn customs and so many things, right? But you will leave if majority, suppose your group is there, so you will give them some ideas, some culture, language. So this is second reason is migration, right? So another reason is migration. एंड माइग्रेशन जब आप करते हो तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, एंड लैंग्वेज एंड कल्चर कैन नॉट बी सेपरेटेड, है ना? तो ये तीन रीज़न है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। इतनी इंग्लिश कैसे इतनी इम्पॉर्टेंट, इतने लोगों की टंग बन गई, लैंग्वेज बन गई। फिर इट डिड नॉट इवॉल्व
in a straight line but rather in distinct phases. ऐसा नहीं था कि ये लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फिर ये ऐसे बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी और प्रेजेंट में आ गई, नहीं। वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन बट रादर इन डिस्टिंक्ट फेजेस। अलग अलग तरह के फेजेस आए, ईच मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट shifts in vocabulary. Why language changes? Because vocab change होती है टाइम के साथ साथ, grammar, right, and pronunciation. I tell you, first of all, before proceeding, vocabulary in our days when we would we were we applied for the job, right? So then if we are interested for particular job, so that we used to tell, we were told that okay, send your biodata. वो ऐसे कहते थे, अच्छा अच्छा आपको जॉब करना है क्या, बायोडेटा भेज दीजिए। और बायोडेटा भी नहीं, बायोडाटा बोलते थे, बायोडाटा भेज दीजिएगा। और वो भी हार्ड कॉपी किसी से भिजवाते थे या खुद जाना पड़ता था, है ना। लेकिन देन आफ्टर सम टाइम we got to know that the same is also called resume, right, or curriculum vitae, right. So that is the vocab is changed right now, which is now these two words are very important, right. If we talk about grammar कि भाई ग्रामर में क्या चेंजेस आए, तो ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ अ वेरी कॉमन रूल, राइट, इंग्लिश की अगर बात करें। लेकिन ग्रामर में हमारे और आपके टाइम में अगर देखो तो लोग आजकल बोलते हैं ना कि एसएमएस लैंग्वेज और ईमेल लैंग्वेज, है ना। तो सम टाइम वी यूज़ इमोजीज, सम टाइम वी यूज़ शॉर्टकट, है ना। तो उस तरह से भी ग्रामर है कि जैसे आई टेल यू, नो सॉरी, मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप कहते हो कि ओके ओके, इफ आई सेड हु वुड लाइक टू गो टू मार्केट टुडे, राइट, तो आपने कहा कि यस इंटरेस्टेड, जैसे आई एम इंटरेस्टेड, नो, आपने लिख दिया कि यस मी टू, जबकि मी टू नहीं होता, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रही हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, लिखने का तरीका बदल जाता है, वो कैप चेंज हो जाती है ना। तो ग्रामर भी चेंज हुई टाइम के साथ साथ। प्रोनाउंसिएशन में तो ज़बरदस्त चेंज आया। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, देन मूवी का अगर एग्जाम्पल हो तो आपने सुना होगा, एक सॉन्ग है, मेरे पिया के रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, फोन क्या बोलती है वो, है ना। तो that movie, you can remember that time where everything, like, movie means unnatural, movie means you have to speak this way, खूब गाना गा गा के आ, भी आपको हमारे पिताजी याद करते हैं, इस तरह से बोला जाता। फिर धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेट हुआ, अब बिल्कुल नेचुरल मूवीज़ बनती है, बहुत ही नेचुरल। आर्ट मूवीज़ तो और भी ज़्यादा नेचुरल होती है। तो प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरह से चेंज होता है। पहले के मतलब लॉन्ग शिफ्ट, जो लॉन्ग वॉवल्स थे वो शॉर्ट वॉवल में बदल गए। तो ये दीज वर द रीज़न बिकॉज लैंग्वेज दिस चेंज अ लैंग्वेज, है ना। सो देर आर थ्री रीजन्स, बेसिक रीजन्स: vocab, grammar, and pronunciation, right? Because of these significant shift, language changes and language change, right? Now, the history of English is generally divided into three phases, है ना, three main phases. Why language changes? So this is old English, middle English, and modern English. These are the changes, right? These are the phases, sorry, these are the phases which are language can, like, development can be divided into three phases. First phase is old phase, then middle phase, and then modern phase, right? So let us see old phase. This is Sarka, right?
circa is near or around, right? So first phase we can say that proof, according to proof, that's a from 450 century to 1150 century, इतना कुछ था. 1150s में दिखा रहा है, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा टाइम. So okay, this is the period, first period according to some text. That's a this is right. So 500 साल अगर इन्होंने राज किया, इतना से ज़्यादा, या अगर यह है तो पूरा 600 साल है ना. तो 700 साल, राइट. तो अगर इतना लंबा इन्होंने राज किया यहाँ पे, तो 700 years इज समथिंग है ना. तो ओल्ड इंग्लिश इतने साल रही. देखते हैं क्या हुआ था, कहाँ से आई ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश को ही दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सेक्सन, है ना. एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश, उसी को ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं, एंग्लो सेक्सन. ये जो था बिगैन विद द माइग्रेशन ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स. हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे इसका कि कैसे जर्मैनिक ट्राइब्स. एक मैप है, तो ये ब्रिटेन है ना, ये ओशन है, यहाँ से कहीं से ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, राइट. और यहाँ से आते हैं ये जर्मैनिक ट्राइब्स. कौन कौन से थे जर्मैनिक ट्राइब्स? द एंगल्स, सेक्सन एंड जूट्स. एंगल्स, सेक्सन एंड जूट्स, ये मिलके अपनी आर्मी लेके और नॉर्थ सी से चल के, ये है ब्रिटेन जिसको ब्रिटॉन कहते हैं, यहाँ पर ये तीनों मिलके आते हैं और तीनों अटैक करते हैं अपनी आर्मी के साथ, है ना. तो टू ब्रिटेन इन द 5th सेंचुरी. तो ये कब आए यहाँ पे? ये आए 5th सेंचुरी में आए, राइट. देयर डायलेक्ट्स फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ द लैंग्वेज. तो इनका जो डायलेक्ट्स था उसने लैंग्वेज को एक बेस दिया. द पीरियड वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन. ये जो इंग्लिश बोलते थे, इसमें लैटिन जो था बहुत इन्फ्लुएंस था उसका, पर्टिकुलरली थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड ओल्ड नॉर्स ड्यू टू वाइकिंग इन्वेजन्स, है ना. साथ साथ में उनका इन्वेजन भी था, वाइकिंग्स का इन्वेजन भी था इन द 8th सेंचुरी एंड 9th सेंचुरी, राइट. तो वाइकिंग कब इन्वेजन के, ये तो चले गए थे 450 में, वहाँ 8th 9th सेंचुरी में वाइकिंग्स ने भी जब वो किया, अटैक किया, है ना. तो क्या हुआ कि चेंजेस आ गए लैंग्वेज में. अब पहला, जैसा हमने देखा अभी कि ग्रामर, वोकैब, है ना, प्रोनाउंसिएशन. तो ग्रामर में क्या हुआ? ओल्ड इंग्लिश वॉज हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज सिमिलर टू मॉडर्न जर्मन और लैटिन. तो बहुत ज़्यादा चेंजेस माने थे, स्टिक था, और सिमिलर टू मॉडर्न जर्मन, उसके जैसा. nouns, adjectives, verbs had different endings to indicate case, है ना. तो इनके पास क्या था कि ये जो नाउन, पहले के नाउन या एडजेक्टिव, है ना, वर्ब्स, ये जो थे ये अलग तरह के थे, डिफरेंट एंडिंग्स टू इंडिकेट केस, जेंडर एंड नंबर. तो इनका कैसा था? इनके जेंडर, नंबर अलग तरीके के से होते थे. दिस मेंट वर्ड ऑर्डर वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन इट इज़ टुडे. अब तो वर्ड ऑर्डर फिक्स है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही लिखना है. पहले कैसा भी ऑर्डर हम फॉलो, माने वो लोग फॉलो कर सकते थे. तो ये याद रखिए कि नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स हैड डिफरेंट एंडिंग्स टू इंडिकेट केस, जेंडर एंड नंबर, राइट. तो ग्रामर अलग थी, समझिए. अभी आप इतना डिटेल छोड़ो. वोकैबलरी, द कोर वोकैबलरी वॉज जर्मैनिक. तो अब क्या वोकैबलरी, पूरी जो ये तीनों ट्राइब्स आए थे, इनकी वोकैबलरी ज़्यादा यूज़ होने लगी. वर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग,
है ना। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैंग पहले ऐसा था। अर्थ को बोलते थे और, ये उसका साउंड था। हाउस इज हुस, है ना, हस आर रिकग्नाइजेबल टुडे। तो अभी रिकग्नाइज करते हैं इसको, तो हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, अर्थ कहते हैं, हाउस कहते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड नॉर्स ब्रॉट वर्ड्स लाइक टेक, गिव, स्काई, दे, आज भी हम इनको यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द epic पोएम बुवुल्फ, है ना। बुवुल्फ जो एपिक पोएम है ये, तो इसमें ये जो वर्ड है वैथ, विगा, देना, ये ओल्ड इंग्लिश है, राइट। गियर, डेगम, जो भी लिखा है ये सब ओल्ड इंग्लिश है। तो दिस मीन्स हार्क, वी ऑफ द spear danes in days of yore, the might of kings have heard. As you can see, it is almost unrecognizable to modern English speaker. वो अपनी ही पुरानी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, है ना। तो ये था, दिस वॉज द टाइम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब वही लैंग्वेज मिडिल कैसे बन गई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लिसन एरा 1150 से 1500 तक, है ना। तो आप ये समझो कि 450 ईयर्स, है ना, 450 ईयर्स, इतना सरसा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक वी कैन बिलीव दैट यहाँ से चेंज आ गया। क्यों आया? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। हमने ऊपर देखा वन ऑफ द रीजंस इज कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 was the single most pivotal event in the history of English. ये जो नॉर्मन थे ये आ गए, ट्राइब्स वहाँ 600-700 साल से अपनी धाक जमाए बैठे थे और अपना मैंने उनकी जनरेशन निकल रही थी, अधिकार करके बैठे थे। लेकिन अब कौन आ गया? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया, उसने अटैक किया। तो अटैक किया तो जीता, और फिर उसके साथ कौन आए? तो द फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन्स, ये फ्रेंच बोलते थे, बिकेम द रूलिंग क्लास। भैया आप तो अटैक किया, जीत भी गए, तो ये रूलिंग क्लास हो गए। वाइल द कॉमन पीपल कंटिन्यूड टू स्पीक इंग्लिश। तो ये तो भाई अब रूलिंग क्लास में तो फ्रेंच की बात होने लगी, फ्रेंच चलने लगी। लेकिन कॉमन लोग क्या करते थे? वो इंग्लिश ही बोलते थे। फॉर नियरली 300 ईयर्स फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लॉ एंड गवर्नमेंट। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यही तीनों होते हैं। तो फ्रेंच इनकी ऑफिस लैंग्वेज जो थी वो क्या बन गई? कोर्ट की लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज, गवर्नमेंट की लैंग्वेज फ्रेंच बन गई। और इंग्लिश को थोड़ा सा डाउन साइज किया गया। दिस लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंच वोकैबलरी इनटू इंग्लिश। तो भाई जो इंग्लिश स्पीकर्स थे वो भी सुन सुन के कुछ कुछ वर्ड्स फ्रेंच के सीख गए, और इसीलिए फ्रेंच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में हम फ्रेंच के ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर कोर्ट लैंग्वेज, लॉ लैंग्वेज, गवर्नमेंट जो था वो सब फ्रेंच बोलने लगे, तो फिर उसका इन्फ्लुएंस इंग्लिश में भी आया, और दिस लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंच वोकैबलरी इनटू इंग्लिश। उसके कारण इंग्लिश में बहुत सारी फ्रेंच वोकैबलरी आ गई। ग्रामर की बात करें तो द कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश बिगैन टू break down, and the case system for nouns and adjectives largely disappeared, and word order became much more fixed, है ना। अब आप उसको सिर्फ इतना समझो कि वर्ड ऑर्डर जो है यहाँ पर आकर अब ये फिक्स हो गया था। ऐसा नहीं था कि कहीं से भी सेंटेंस स्टार्ट करो जैसा ओल्ड इंग्लिश में होता था, ऐसा नहीं था। vocabulary, thousands of French words were adopted. French words, of course, adopted, especially in areas related to power, law, and high culture. भाई पावर जिसके पास है वो अपना इन्फ्लुएंस तो छोड़ेगा ही। For instance, the old English words for animals like oxen, sheep, swine spoke by English speaking peasants who
जो वहाँ के किसान थे वो कैसी बात करते थे, हु tended them were kept, but the French words for their cooked meat, तो वो क्या था, बीफ को ये ऐसे बोलते थे, बूफ, मटन को मॉटन, जो भी बोलते थे ना, ये वाले, ये फ्रेंच का इन्फ्लुएंस। तो ये क्या था, वर एडॉप्टेड बाय द फ्रेंच स्पीकिंग एलीट, क्योंकि भाई फ्रेंच में जो एलीट क्लास थी वो बोलती थी, तो ये बीफ को ये बोलने लगा, मटन को ये, इस तरह से लैंग्वेज। एग्जाम्पल क्या है, जॉफ्री चौसर, कैंटरबरी टेल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिडिल इंग्लिश, जो मिडिल इंग्लिश में लिखा गया। और द ओपनिंग लाइन्स आर, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज, जो भी लिखा है, विथ हिज दिस टॉर्च, ये सब है ना, ये लिखा है। दिस ट्रांसलेट्स टू द व्हेन अप्रैल, ये उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि व्हेन अप्रैल with its sweet showers has pierced the drought of March to the root. While the spelling is different, the words and structure are much closer to what we speak today. तो फिर क्या हुआ कि मॉडर्न स्ट्रक्चर जैसा बनने लगा, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होने लगी, तो फिर आया मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश मतलब सिरसा 15 एट टू प्रेजेंट। तो द ट्रांजिशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वॉज ड्रिवन बाय टू मेजर इवेंट्स। क्यों अब वो ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न बन गई, वो उसका दो रीज़न, ग्रेट वॉवल शिफ्ट है ना, एंड द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, उसका इन प्रिंटिंग प्रेस बन गई और लॉन्च हो गई, तो प्रिंटिंग प्रेस मतलब बहुत लोगों के हाथ में स्टडी मटेरियल, बाइबल ट्रांसलेशन जाने लगा, तो लोग पढ़े लिखे हो गए। पहले उस बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता था क्योंकि वो एलिट क्लास तक था। पर ये दो रीज़न, एक तो ये कि वॉवल शिफ्ट हुआ, ग्रेट वॉवल शिफ्ट, और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से वही मिडिल इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश बन गई, है ना। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली मॉडर्न और जो अभी करंट है वो लेट मॉडर्न, है ना। तो अर्ली मॉडर्न 500 टू 1800 तक अर्ली मॉडर्न था। दिस पीरियड saw the great vowel shift, a major change in pronunciation where long vowels of Middle English began to be pronounced higher in the mouth, right? And this is why the spelling of many words no longer matches their pronunciation. एग्जाम्पल ओ इन माउस, तो वो आजकल रिड्यूस करने लगे, है ना, क्योंकि लॉन्गर साउंड्स, लॉन्गर वॉवल शिफ्ट ख़त्म हो गया, है ना। एंड फूड टू बी प्रोनाउंस डिफरेंटली, राइट। तो फूड ऐसे। द प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस बाय विलियम कैक्सटन, क्वेश्चन ध्यान रखना आपके काम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस बाय विलियम कैक्सटन, है ना, इन 15th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, ओके, राइट। हाँ, चलो फिर क्या हुआ कि द रेनेसा ऑल्सो ब्रॉट अ फ्लड ऑफ लैटिन। रेनेसा के आने से क्या हुआ, लैटिन वर्ड्स भी बहुत सारे आ गए, and Greek words into the language, expanding the vocabulary for scientific and academic concept। तो फिर जब रेनेसा यानी रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, लैटिन की तो जैसे बाढ़ आ गई और खूब सारे नए वर्ड्स आ गए जो किसको सपोर्ट कर रहे थे, वोकैबलरी, साइंटिफिक, एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब आए। शेक्सपियर्स works in early modern English, while you might need to look up a few words, his language is largely understandable, है ना, काफ़ी समझ सकते हैं हम। एंड
अ लाइन फ्रॉम हैमलेट, टू बी एंड टू बी और नॉट टू बी, ये तो बड़ी फेमस वर्ल्ड फेमस लाइन है. डिलेमा है ना, दैट इज द क्वेश्चन. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज ऑलवेज आइडेंटिकल इन स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ इट्स मॉडर्न. ठीक है. अब लेट मॉडर्न कहाँ से आया? वो आया सिरसा 18 टू प्रेजेंट, यहाँ से आया. So the final stage of development has been characterized by the massive expansion of the vocabulary. बहुत ज़्यादा धीरे धीरे vocabulary इतने नए तरह के ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसलिए वो लेट मॉडर्न है. ठीक है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, क्रिएटिंग टर्म्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड possessions, and the rise of British Empire which led to borrowing words. तो ब्रिटिश एम्पायर आया तो बोरोइंग वर्ड्स भी लेकर, एंड देन कल्चर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. खूब जगह इन्होंने कॉलोनी बनाई, तो उसके कारण इनको बहुत सारे नए वर्ड सीखने मिले. और जैसे शैम्पू है ना, पायजामा, एंड रैपिडली बोरोइंग वर्ड्स एंड स्ट्रेंज फ्रॉम पॉप कल्चर एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन. तो वो तो था ही, ग्लोबल कम्युनिकेशन, पॉप कल्चर आ गया है ना. तो ये सारे बोरिंग वर्ड्स बस यहाँ वहाँ से आ जाते हैं. राइट. तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में तो आया होगा. विल डिसाइड एंड विल मेक इट अगेन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.